Let us discuss the problem of mechanics, and it is taken from a foreign author book, John Kalda. He has a very popular collection of problems, and from that book I have taken this problem. Let us narrate this problem briefly. Here we have a rectangular block of mass capital M resting on a smooth horizontal surface, and this is connected to a light and smooth pulley, and a light thread and inextensible thread, that means ideal thread, is passing over this pulley in this fashion, like one end is fixed to this wall and other end is connected to another small size block of same as small m. And this thread is tilted at angle alpha first, and then the whole system is allowed to move, यानी इसको हमने फ्री कर दिया अब चलने के लिए. The question पूछा गया है, what is the question, that find the ratio between these two masses in terms of alpha so that once they are allowed to move, जब इनको हम allow करेंगे चलने के लिए, after that this angle must not change, for which ratio of masses will the angle alpha remains unchanged throughout the subsequent motion, right? So you try and then see the, I have given here answer. Your answer should come out to be this one. It should not take more than 5 to 10 minutes if you know how to attack such problems. Let us now see the solution after we have tried, then see the solution, which I am going to discuss. The key point in this problem will be this one, that this angle remains constant. What does it mean? Let us see this original figure again. If this angle is to be constant, then imagine a person on the pulley. He will feel that either this block is at rest, he will feel that either this block is at rest, or if it is accelerating, then it is moving like this, in this direction, right? It is not having any acceleration perpendicular to this thread. Imagine a person here, and if this thread is not to change its angle, then obviously this person will feel that this block is either rest or it is moving like this, in this direction, or maybe in this direction, but no acceleration should be perpendicular to this thread, right? One point. And next point is that whatever acceleration this object will follow for this block, that will correspond to increase in this length. And since length of this thing is constant, whatever length increases here in certain time, same length must decrease from this side. That means if in certain time this block shift leftward, say by x meter, then this length must increase by x meter, so that total length of this thing remains constant, right? So these are the two key points to handle this, to solve this problem. That what I have narrated here. If the angle alpha is to remain same, then the relative to this mass m, this is mass capital M basically. I had talked about pulley. Pulley is part of this capital M. So we can say that relative to capital M, the acceleration of m, small m, mass should be along the inclined thread. इसका जो भी एक्सेलरेशन होना चाहिए इसके रिलेटिव वो along the thread होना चाहिए. That is the key point, one of key points.
And next one is the constraint. What constraint? कि length of thread is to be constant. That is constraint. इसका outcome क्या होगा? Magnitude of the acceleration of the block of mass m relative to mass capital M should be a is same as leftward acceleration of capital M itself. अगर इसका एक्सेलेरेशन हम इधर एक स्मॉल मानते हैं तो इसके रिस्पेक्ट में यानी पुली के रिस्पेक्ट में इसका एक्सेलेरेशन अलोंग द थ्रेड होगा कितना? ए होगा। अलोंग द थ्रेड होगा वो तो इसलिए क्योंकि एंगल कांस्टेंट है, और ए ही इसलिए होगा इसके रिस्पेक्ट में क्योंकि ये लेंथ कांस्टेंट रहनी है, राइट। जितना ब्लॉक इधर शिफ्ट करेगा उतनी लेंथ इधर बढ़ जाएगी। अच्छा, तीसरा की पॉइंट मैंने वैसे लिखा नहीं, दैट इज़ ए वेरी कॉमन कॉन्सेप्ट दैट जब भी हम किसी एक्सेलेटेड ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में किसी और को एनालाइज करते हैं, किसी और के मोशन को, तो उस पर एक सूडो फोर्स मानते हैं इन एडिशन टू रियल फोर्स। सपोज जब हम इस ब्लॉक को ऑब्जर्व करेंगे फ्रॉम दिस ब्लॉक, यानी इस पर बैठ के या पुली पर बैठ कर, तो इस ब्लॉक पर हम एक रियल, दोनों रियल फोर्स, जो भी रियल फोर्स है उनके अलावा उनसे एक्स्ट्रा क्या मानेंगे? एक सूडो फोर्स। वो कितना होता है? वो एक्सेलेरेशन इसका और मास इस ब्लॉक का मल्टीप्लाई करके इस एक्सेलेरेशन की उल्टे डायरेक्शन लगाते हैं। ऐसा करने के बाद जो रियल और सूडो फोर्स मिलकर जो एक्सेलेरेशन हमें मिलेगा वही इस ऑब्जर्वर को फील होगा, राइट। Let's come to the problem. T is the tension. थ्रेड में टेंशन हर जगह सेम रहता है अगर लाइट थ्रेड है तो, दैट वी नो। और स्मूथ पुलिस अगर पास होगा तो यहाँ टेंशन चेंज नहीं होगा, तो यहाँ टी तो यहाँ भी टी। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम में यही दो रिलेवेंट फोर्सेज हैं। वैसे दिखाने के लिए इसका वेट भी दिखाया है, नॉर्मल एक्शन। दीज टू आर नॉट रिलेवेंट हियर बिकॉज देयर इज नो फ्रिक्शन। तो इनका कोई रूल यहाँ नहीं, कोई वर्टिकल मोशन नहीं है, राइट। तो हॉरिजॉन्टली इनका जो रिजल्टेंट हो जाएगा ऑब्वियसली टी का इधर जो कंपोनेंट होगा टी साइन अल्फा उससे ज़्यादा होगा, साइन अल्फा इज लेसर देन 1। तो नेट फोर्स इस पर हॉरिजॉन्टली देखा जाए तो लेफ्ट में आएगा। तो लेफ्ट में इसका एक्सेलरेशन ए मान लेते हैं। वी कैन राइट दिस इक्वेशन टी माइनस टी साइन अल्फा इज एम ए। अब इसमें थोड़ा सा केयरफुल लेना होगा। मैं इस पर न्यूटन्स लॉ लगाते समय व्हाट आई एम गोइंग टू डी, आई एम गोइंग टू अप्लाई न्यूटन्स सेकंड लॉ on this block relative to this wedge, relative to this block, rectangular block, or you can say relative to this pulley. So I have just explained earlier that there will be a pseudo force as seen from here in addition to real force. So this block is experiencing three forces, and under these three forces it has acceleration in this direction same as a whatever it has here, राइट। तो अब न्यूटन सेकंड लॉ अगर मैं इस थ्रेड के अलाउंग लगाऊं इस ब्लॉक पर, तो इधर फोर्सेस क्या है? यहाँ इस फोर्सेस को मैं दोबारा यहाँ दिखा दिया है, लेट अस कम टू हियर। तो इधर फोर्सेस आ जाएंगे एम जी कॉस अल्फा, और एम ए का इधर हो जाएगा एम ए साइन अल्फा। तो एम जी कॉस अल्फा प्लस एम ए साइन अल्फा, इसका इधर कंपोनेंट एम जी कॉस अल्फा प्लस एम ए साइन अल्फा। टी अपोजिट में है तो माइनस टी इक्वल टू इसका मास इधर है, इसका जो एक्सेलरेशन होना है दैट इज ए। तो ये एक्सेलरेशन होना है रिलेटेड टू पुली, और इसीलिए मैंने सूडो फोर्स भी ले लिया है, राइट। दैट इज रिक्वायर्ड, उसको लेना जरूरी है। तो एक इक्वेशन हमें ये मिल गई, एक ऑलरेडी यहाँ मिल गई थी, और हमारे पास वेरिएबल क्या है? टी और कैपिटल एम स्मॉल एम का जो रेशियो है और ए। सो वी हैव थ्री वेरिएबल्स। तो हमें एक इक्वेशन और चाहिए। वो इक्वेशन कहाँ से आएगी? अभी इस बात का हमने यूज़ नहीं किया कि इसका एक्सेलरेशन इसी तरफ है, कितना है वो तो मैंने यूज़ कर लिया इसमें, लेकिन इस तरफ होने का मतलब है कि इसके 90 डिग्री पर नहीं है। कोई वेक्टर जिधर होता है उसके 90 डिग्री पे वो एब्सेंट होता है। तो हमें ये भी इंश्योर करना पड़ेगा कि इस ब्लॉक का इस तरफ कोई एक्सेलरेशन ना हो, जिससे कि एंगल इंटैक्ट रहे। तो अब इस डायरेक्शन में टी का कोई इफेक्ट आएगा नहीं, क्योंकि टी से 90 डिग्री पे है। तो यहाँ आके इस फिगर में देखते हैं, तो यहाँ इस
के परपेंडिकुलर मैंने एंगल वगैरह दिखा दिए हैं। यू कैन डू दैट। एम ए का इधर कंपोनेंट होगा एम ए कॉस अल्फा, एम जी का इधर साइन कॉस जाएगा, इधर साइन आ जाएगा, तो एम जी साइन अल्फा शुड बी इक्वल टू एम ए कॉस अल्फा। तो ये दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे। तो मैंने यहाँ किया है एम जी साइन अल्फा बराबर एम ए कॉस अल्फा, इन इस डायरेक्शन फोर्सेस बैलेंस कर दिए। दैट मीन्स इस तरफ कोई नेट एक्सेलरेशन नहीं होना है, क्योंकि पुली पे जो भी बैठा है उसे इस एक्सेलरेशन को, इस एंगल को इंश्योर करना है कांस्टेंट। तो थ्रेड को घूमते नहीं फील होना चाहिए, तो वो तभी होगा जब इधर उसका एक्सेलरेशन क्या हो, ज़ीरो। और यहाँ से बड़ा पॉपुलर सा रिजल्ट आ जाता है ए इक्वल टू जी टेन अल्फा। वैसे डायरेक्टली इसको हमें नहीं लिखना चाहिए, मे बी कोई किसी को इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है। सो वी कैन डिराइव इन दिस वे कि इधर कोई एक्सेलरेशन नहीं होना है, इस तरह से इसको लिख लेंगे। अब इन तीनों की यूज़ करके यहाँ से ए मिल गया, लेट अस प्लेस ए हियर, और टी की जो पहली इक्वेशन आई है उसको और ए की वैल्यू प्लेस करके यहाँ तो हमें फाइनली एलिमिनेट कर देंगे, और हमें स्मॉल एम और एम का रेशियो एग्जैक्टली वही आ जाएगा जो यहाँ एक्सपेक्ट किया गया है।